Welcome to the Matrix DigiLearn English session. Today we are going to discuss about reading comprehension. We are going to discuss about the concepts related to reading comprehension. Now, when we talk about concepts, there are a lot of things that we know about reading comprehension. There are some ideas or some notion that we have about reading comprehension. So I'm going to address all those, try and make reading comprehension a little lucid, clear, easy to understand, and approach the reading comprehension. That would be my objective, and I'm going to slowly take you through a set of questions in order to help you with the concepts. I'm going to take you through a set of questions, and these are the questions which I have been often asked by the students in the class. Right? So basically, your questions, whatever questions you had or you have in your mind, today we are going to clear that. And as I told you, these are the questions which normally students ask in the different sessions that I take. And so obviously, when it is a collection of the questions by from a large number of students, right? Now batches, different batches that I take, different places where I take the classes. So there, the kind of questions that I face related to, or the students ask me regarding reading comprehension, that I have tried to compile it in this video. So let us discuss this और ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है. नाउ पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टॉपिक्स. अच्छा, टॉपिक्स आर नेवर फिक्स्ड. Nobody decides a topic that the reading comprehension will be on this topic or that topic. In order to understand this, first we need to understand how a reading comprehension is composed, or how is it created. Rather, how is a reading comprehension created. पहला सवाल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन लिखता है? कोई तो लिखता होगा. सो लेट मी टेल यू, नोबडी राइट्स अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी ऑथर नहीं होता है जो कि बैठ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आज लिखूंगा. नहीं. तो फिर ये बनता कैसा है? हु क्रिएट्स इट? Some question setters, some examiners, someone. What he does is he reads in a article, might be in a newspaper, and article in a magazine. He might have read some books, कोई novel या ऐसा कोई किताब पढ़ रहे होंगे. या तो कोई रिसर्च आर्टिकल होगा जो कि उनको अच्छा लगा. मोस्टली इनका जो कलेक्शन एरियाज होता है वो न्यूज़पेपर्स होते हैं. And there are lot of foreign newspapers, lots of foreign newspapers. जैसे कि एक बहुत कॉमन एरिया जहां से वो लोग आरसीज दे कलेक्ट इज एओन एसेस. एईओएन एओन एसेस से बहुत सारे एसेस आरसीज वो लोग कलेक्ट करते हैं. आरसीज नहीं, आर्टिकल्स वो लोग पिक करते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से करते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स से करते हैं, द अमेरिकन द इकोनॉमिस्ट से करते हैं. सो लाइक दिस कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं लॉन्ग रेंज. ऐसा नहीं कि मैं यही बोल रहा हूँ सिर्फ इसी में से कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है. अब कोई फिक्स नहीं है कि मैं इसी में से ही लूंगा. बस कोई भी न्यूज़पेपर में कोई एक आर्टिकल पसंद आ गया मुझे, तो हिंदू न्यूज़पेपर से या किसी भी न्यूज़पेपर से कोई एक आर्टिकल पसंद आ गया, बस उसको उठाया और उसको एक आरसी आर्टिकल लेके मैं उसको आरसी बना डाला. सो ये होता है उसका बेसिकली सिस्टम. नाउ उस आर्टिकल को लेने के बाद वो दैट माइट बी ऑफ 2000 words, 1000 words, whatever, 2 pages, whatever it is, 1000, 2000, whatever words that they take, then they do some additions, modifications and deletions to it. मीन्स उसमें से कुछ निकाल देते हैं. नेचुरली एक 2000 पेज का 2000 वर्ड्स का आरसी होता नहीं है. 450 to 550 words is a good size of an RC. 650, 750 थोड़ा लेंथी आरसीज होते हैं.
बट नॉर्मली जो एवरेज साइज होता है आरसी का वो 550 टू 650 ऑन द हायर साइड होता है, वरना वही 500 550 600 उसी के अंदर में नॉर्मली आरसीज होते हैं। नाउ वो लोग उसको क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट दैट आरसी। आफ्टर क्रिएटिंग दैट आरसी they themselves read that RC properly. After reading that RCs, they start making questions and forming options. They make the questions, they form the options. There are certain fixed type of questions in an RC. 6 फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो मोर और लेस उसी क्वेश्चंस के ऊपर में बेस करके दे मेक क्वेश्चंस। जैसे एक होता है मेन आइडिया क्वेश्चन, एक होता है फर्दर आइडिया या तो एक्सटेंडेड आइडिया क्वेश्चन, एक होता है इम्प्लाइड आइडिया और इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, एक होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, एक होता है दिस टोन क्वेश्चंस, राइट। सो इस तरह के डिफरेंट टाइप, अराउंड 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आरसीज में होते हैं। तो वो लोग उसी को बेस करके क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं और उसी को बेस करके वो लोग ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। So this is the way an RC is created. So nobody is specifically like thinking that I'm going to create an RC on say geography or on literature or say on music or say RCs on philosophy, sociology। ऐसा कोई नहीं सोचता है, बस एक आरसी क्रिएट करना है, कुछ भी पढ़े उनको अच्छा लगा उसको उठाए, उसमें एक आरसी ऐसे क्रिएट किए और पेश कर दिए। तो इसीलिए आरसीज कहीं से भी आ सकता है। नाउ व्हाई शुड आई बॉदर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई बॉदर, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज बिकॉज द आरसी दैट you will read will not be the original one which has been written by an author, by a writer। अगर he is a professor of finance and in the Economic Times he has written an essay related to the finance or on money matters and all, or on the economic affairs he has written, so the question setter or the RC that you are reading is not the one which has been picked up as it is, जैसा है वैसे ही पिक करके नहीं दिया गया है, उसको तो कोई और बीच में उसको तोड़ मरोड़ के कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐड करके वो अपना क्रिएट किया है और उसके ऊपर उसने सवाल अपना क्रिएट किया, क्वेश्चंस ही हैज सेट ऑन दैट। तो इसीलिए मैं जान के क्या करूं कि किस टॉपिक से आरसी बनाया जाते हैं। फिर दूसरा, कभी भी जब भी आरसी आंसर करते हो अपना नॉलेज का इस्तेमाल मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। कभी भी अपना नॉलेज आरसी में मत लाना। अगर सपोज मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मान के चलो कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं और मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, मेरे को उस टॉपिक पे बहुत सारा नॉलेज है। अब मैं आरसी जो पढ़ रहा हूं वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं वो क्वेश्चंस को लेके मैं अपना जो नॉलेज है वो नॉलेज को मैं यूज करके मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करना कोशिश करता हूं या आंसर करना शुरू कर देता हूं। वो आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे अगर वो इंफॉर्मेशन पैसेज में क्लियरली नहीं दिया गया होगा और मैं मेरा अपना नॉलेज को यूज करके मैं उस आरसी पे मैं क्वेश्चंस बना दिया, आई मीन आंसर कर दिया, सॉरी, उस क्वेश्चंस का आंसर को मैं यूज कर दिया वहां पे, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो भी आंसर्स आरसीज में वट एवर क्वेश्चन यू आंसर इन आरसी, प्लीज रिमेंबर, do not import your own knowledge from outside. Whatever is given in the passage, stick to within the purview of that, उसी के दायरे में रह के आंसर करना, उसके बियॉन्ड एक भी डॉट और डैश उसके बियॉन्ड जाना ही नहीं। अगर कोई भी शब्द कोई भी वर्ड जो पैसेज में नहीं दिया गया है और तुम्हारा नॉलेज में है क्योंकि तुम उसके स्टूडेंट हो या तो तुम्हें अच्छा लगता है वो टॉपिक या तो उस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन है, तुम उसको अगर वहां पे इस्तेमाल कर दिए तो वो रॉन्ग हो जाएगा वो आंसर। तो इसलिए अगर मैं जानता भी हूं कि कहां कहां से आता है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? और एक रीजन, आरसी जो होता है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आरसीज हम लोग को देते हैं एग्जाम में। ये एक 550 650 वर्ड वाला एक पैसेज पैराग्राफ पढ़ के उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चंस आंसर करने से क्या हासिल होता है? इट टेस्ट्स
our analytical skill. हाउ कैन वी एनालाइज अ पैसेज, जो कि हम लोग को पहले इससे पहले मालूम था नहीं. हमारे सामने में एक मैटर है, उस मैटर को पढ़ के मैं कितना क्विकली विद इन 5 सेकेंड्स, सॉरी 5-7 मिनट्स उसको समझ के, विद इन 5-7 मिनट्स उस पैराग्राफ को समझ के उसको अच्छे से एनालाइज करके और उसका सवाल को मैं नो आंसर कर सकता हूं. तो वो ही स्किल टेस्ट किया जाता है, एनालिटिकल स्किल. अब मैं एनालाइज कर पा रहा हूं कि नहीं वो पैसेज जो है, क्योंकि इससे पहले तो मैं पढ़ा नहीं था, मैं उस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूं नहीं, फिर भी मैं उसको पढ़ के उसको एनालाइज किया करके उसको मैं आंसर कर सका. तो ये होता है द रीजन व्हाई यू आर गिवन एन आरसी और द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड गिविंग एन आरसी. Am I clear? So that's why even if you know which all topics from where RC comes does not matter. There of course is a positive side, बिल्कुल है, there's a little positive side. Suppose you are reading an RC which is from your area of interest, जिस सब्जेक्ट पे तुम्हारा इंटरेस्ट है या तुम जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो उसी एरिया से कोई आरसीज पिक करके दिया गया. वहां पे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आरसीज में कुछ जार्गॉन्स या टेक्निकल वर्ड्स, आरसीज में जो टेक्निकल वर्ड्स या जार्गॉन्स यूज किए गए होंगे, वो जार्गॉन्स या टेक्निकल वर्ड्स के साथ में तुम काफी कन्वर्सेंट हो गया. उस टेक्निकल वर्ड्स तुम्हें भली भांति मालूम होगा. सो वहां पे वो एडवांटेज प्ले करता है. बस दैट्स ऑल. टेक्निकल वर्ड्स का मेरे पास में नॉलेज होता है, या हो सकता है कि अगर तुम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और मैं नहीं हूं और जो पैसेज है वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो कुछ कुछ उसमें से टर्मिनोलॉजी या जार्गन हम लोग बोलते हैं, जार्गन टेक्निकल वर्ड या टर्मिनोलॉजी जो कि इकोनॉमिक्स का फील्ड का वर्ड्स है वो दिया गया है. अब तुम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें समझ में आ गया, वो वर्ड समझ गए तुम. बट मैं नहीं हूं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, तो मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आया. तो बस उतना ही डिफरेंस है. बाकी ओवरऑल पैसेज को समझ के उसको एनालाइज करके आंसर करना, तुम्हारे पास भी जितना स्कोप है मेरे पास भी उतना ही स्कोप है. तुम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो के भी जितना स्कोप है मेरे पास भी उतना ही स्कोप है. ठीक है. तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि अपना नॉलेज बाहर से मत लाना. यानी तुम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो भी तो तुम्हारा एडवांटेज नहीं मिलेगा वो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने का. क्यों? बिकॉज आंसर्स यू कैन नॉट ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड. Answers has to be strictly within the purview, daira, which is given in the passage. Clear? So RCs can be from anywhere. The topics can be from anthropology, sociology, political science, international politics, political philosophy, literature, music, art. So just think, and it can be a topic. Even some motivational, philosophical topics can also be a part of the reading comprehension. In certain exams like in the management exams in ZAT and all, the CAT also, but less more in ZAT, they give you poetry also as part of a reading comprehension. Poetry is also given as a part of an RC. उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे कि वो क्या है और क्यों वो थोड़ा सा it poses a little challenge. Why it is well discussed in another forum, right? So आगे बढ़ते हैं. Answering all your questions. Got it? So what will be the topics? Clear? Next. Ideally, how much time should each RC take? अगर हम देखते हैं, if we say not क्योंकि कोई भी, मैं भी नहीं किया था कभी. I have never counted कि मैं कितना स्पीड में पढ़ता हूँ. एक words per minute I have never counted. बट अगर काउंट किया जाए, सो एज द रिसर्च सेज, तुम लोग खुद काउंट करके भी देख सकते हो. एक पर्टिकुलर पैसेज ले लेना. अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो वर्ड फाइल पे जा टाइप करके या तो कॉपी पेस्ट करके उसको वर्ड में सिलेक्ट कर लेना. तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन में दिखाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स. तुमको पता चल गया कि इतना वर्ड्स का है. फिर उसको पढ़ना शुरू करना. ठीक 1 मिनट में देखना कि कितना तुम पढ़ सके हो, कितना कहाँ तक पढ़े हो, और उससे पता चल, फिर उसको सिलेक्ट कर लेना. फिर वो शो कर देगा नंबर ऑफ वर्ड्स. तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्पीड कितना है. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली दोज हु आर वेरी मच कन्वर्सेंट, एक्वेंटेड, दोज हु आर कंफर्टेबल रीडिंग इंग्लिश फाइन प्रिंट, जो छोटा छोटा अक्षर जैसे बुक्स में लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में से लिखा जाता है,
वो फॉन्ट साइज पढ़ने में अगर कोई कंफर्टेबल है तो वो पढ़ता है करीब 180 से 200 वर्ड्स पर मिनट, 180 से 200 वर्ड पर मिनट। और अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला हो, कोई अच्छा पढ़ने वाला मीन्स रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यानी वो पढ़ने में इसको इंटरेस्ट है, इंग्लिश का नॉवेल्स या कुछ भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, इंग्लिश का टॉपिक्स, सो फिर वो पढ़ता है करीब 220 के करीब करीब स्पीड में वो पढ़ता है, 220 230। और अगर कुछ नॉवेल पढ़ रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इज नो फुल ऑफ सस्पेंस एंड ऑल दैट, सो ही माइट गो अप टू 250 to 300 words per minute he can go, if he is reading something which is very exciting or very interesting. So that is the speed at normally which we read. Expected speed is around 300 to 350 words per minute. Why? Because when we are reading at a speed of 300 to 350 words per minute, speed, overall speed, so the average speed actually comes down to 200 or 220 words per minute. कैसे? Because we have to slow down at commas, जहां पे कॉमा दिया गया वहां पे स्लो करो, ब्रेक लगाओ गाड़ी पे। जहां पे वर्ड्स दिया गया जैसे हेंस, सो, देयरफॉर, ये सारा वर्ड क्या, यानी ये वो बता रहा है कि किसी चीज का कॉज का इफेक्ट हुआ, राइट, रिजल्ट, देयरफॉर, हेंस, सो। तो ये ध्यान देना है कि ये क्यों यूज किया गया, ये हेंस, सो, देयरफॉर, यानी किस बेसिस पे ये कुछ एक क्लेम को इट इज नो कंप्लीटिंग और गिविंग इट अ कंक्लूजन। फिर वैसे बिकॉज से वर्ड्स लाइक वेदर, whenever, although, but, and, जहां पे ये सारा कंजंक्शंस यूज होता है इसका कोई ना कोई तो माने रहता है। बिकॉज जैसे कि मैं जब ऑल्दो लगाता हूं तो व्हाट हैपेंस, मैं किसी चीज को थोड़ा सा डिस्काउंट देता हूं, थोड़ा मार्जिन देता हूं। हाउएवर भी लगाता हूं तो आई डू द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से ऑल्दो ही इज अ गुड स्टूडेंट बट ही इज वेरी मिस्चीवियस, यानी मैं पहले पॉजिटिव वर्ड बोला ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, फिर बट यूज किया करके आई सेड ही इज वेरी मिस्चीवियस, यानी कॉन्ट्रास्ट, इट शोज कॉन्ट्रास्ट, राइट। ही कम्स टू द कॉलेज एवरी डे, however he rarely attends classes। देखो पहले मैं बोला he comes to college regularly every day, यानी मैं उसके बारे में पॉजिटिव बोला, देन मैं however यूज करके बोला कि rarely attends the classes। तो कॉन्ट्रास्ट शो करता है ये सारा वर्ड्स। तो इसीलिए जब भी हम लोग इस तरह का वर्ड्स के पास आएंगे वी हैव टू स्लो डाउन एंड आस्क आवरसेल्फ व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड, और एंड उससे 2-3 सेंटेंस पहले हम लोग को देख लेना है जहां पे ये वर्ड यूज किया गया है कि किस बेसिस पे ये यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहा है कि कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है तो किस चीज को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, किसी चीज को अगर थोड़ा सा डिस्काउंट या मार्जिन हम जैसे बोलते हैं दे रहा है तो किस बेसिस पे वो दे रहा है। तो ये अगर ध्यान में आ गया तो आरसी विल बिकम इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पॉइंट इज व्हेन वी रीड समथिंग वी रीड इट विद हाई डिसइंटरेस्ट। अगर जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट जीरो है, बहुत जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, जैसे मानो कि कोई जबरदस्ती बैठाया हुआ है कि पढ़ो, और हम उस माइंडसेट में नॉर्मली पढ़ते हैं, और उस माइंडसेट से अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे हमें कुछ भी याद नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और वो पैसेज का जब क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे 5 क्वेश्चन के लिए 5 बार हमको, या तो 8 क्वेश्चन के लिए 8 बार हमको पैसेज में आके चारों ऑप्शन को देखना है, ढूंढना है और उसका आंसर्स निकालना है। सो अब एक बार पढ़ने का टाइम नहीं है, हम अगर 8 क्वेश्चन के लिए 8 बार पैसेज में आते हैं और उसका आंसर ढूंढते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, सोच के देख लो क्या हालत होता है। तो इसीलिए जब हम ना आरसीज हम लोग पढ़ते हैं अगर कंफर्टेबल है तो हम लोग नॉर्मली जो एवरेज स्पीड है, जो फाइनल स्पीड होता है वो 200-220 वर्ड पर मिनट। अब इतना फास्ट मैं पढ़ूं कैसे, मैं और कभी बताऊंगा और वीडियो में कि स्पीड कैसे पढ़ते हैं, हम स्लो डाउन क्यों स्लो क्यों हो जाते हैं, तो इस बारे में हम लोग बात करें। हाउ टू रीड फास्टर, देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, हाउ टू रीड फास्टर, हम कैसे स्पीड पढ़े। अच्छा, पहले भी तुम स्पीड पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत ही आविष्कारी चीज बोलने वाला हूं, नहीं, यू हैव ऑलरेडी डन इट। एग्जाम के आगे रात को जब बैठते हो
है ना। जब जिन दिनों में एग्जाम्स नहीं होते हैं तो तुम एक चैप्टर लेके 5-7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस लेके पूरा शाम बिता देते हो। बट एग्जाम के आगे रात को 5 चैप्टर्स और करीब 20-25 क्वेश्चन तुम वही 3-4 घंटे में या 5 घंटे में वो सारा चैप्टर्स को हजम कर लेते हो, और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो उसको आंसर भी कर लेते हो। यानी इसका अर्थ क्या है? यह है कि जो एग्जाम के आगे रात को मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा था और अपने दिमाग पे लगाम लगा के रखा था कि इसको जाने नहीं दूंगा, तू भटक नहीं सकता, यहीं रह और ध्यान दे, क्योंकि आज रात को अगर मैं ध्यान से नहीं पढ़ा, कल एग्जाम हॉल में मैं ही सुपरवाइजर बन जाऊंगा। यानी सारे बच्चे लिख रहे होंगे, मैं बैठ के सबके तरफ देख रहा रहूंगा कि कौन क्या लिख रहा है और कौन लिख रहा है नहीं लिख रहा है, मैं सबको ध्यान दे रहा रहूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो मैं बन जाऊंगा सुपरवाइजर। मैं बैठे बैठे अपनी जगह पे सबको सबकी तरफ देखता रहूंगा। सो यू नो दैट। तो इसीलिए क्या होता है कि एग्जाम के आगे रात को यू स्टार्ट रीडिंग, योर ब्रेन बिकम्स वेरी सेंसिटिव, यू स्टार्ट रीडिंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड। दिमाग को तुम बोलते हो आई विल नॉट लेट यू गो टुडे बिकॉज इट इज नाउ और नेवर, आज कर लो वरना और कभी नहीं मौका मिलेगा। सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू रीड फास्ट माय फ्रेंड्स। And you, as I mentioned, you have already done it, so no big deal. Again, you can do it. Just bring in a sense of urgency. याद रखो ये word. Bring in a sense of urgency. यानी तुम्हारे अंदर में वो urgency आया that I have to read it. I have to read it fast. I cannot allow my brain to go and wander around. कहीं घूम फिर के मेरा दिमाग आ जाए. I cannot allow. सो मैं उसको वहीं वहीं उसको दिमाग को बैठाऊंगा, बोलूंगा कि आज भैया घूमना फिरना बंद, क्योंकि कल सवेरे टुमारो इज द एग्जाम टाइम एंड आई विल बी देयर इन द एग्जाम हॉल, एंड इफ आई लेट यू गो एंड रोम टुडे, टुमारो मॉर्निंग my eyes will be roaming inside the class and not in the paper answer sheet. So you bring in that sense of urgency, अपने अंदर में वो urgency लाओ और आराम से तुम पढ़ सकते हो, स्पीड भी पढ़ सकते हो, और जो पढ़ोगे वो याद भी रह जाएगा, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगा जब 8 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अच्छा, और एक रीजन क्यों हम लोग धीरे स्लो हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, कोई एक वर्ड आ जाता है जो वर्ड की थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो वर्ड को देखते ही मुझे पता चल जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड दैट आई डोंट नो दिस वर्ड, I don't know, I've never come across, because when I look at that word, I can understand that I don't know this word. And then what I do is, I try to pronounce that word. उस वर्ड को मैं प्रोनाउंस करने का कोशिश करता हूं कि वो कैसे बोला जाएगा वो वर्ड। अब ये बात बताओ, किसको पढ़ के सुना रहे हो? नहीं ना। अगर किसको पढ़ के नहीं सुना रहे हो तो फिर वो वर्ड को प्रोनाउंस करने का जरूरत क्या है? मेरे को नहीं मालूम ये वर्ड, बात खत्म हो गया, बस स्किप करो, आगे निकल जाओ। ऐसे एक कोई भी आरसी पढ़ोगे तो हर एक आरसी में ऐसे 4-5-6 वर्ड्स मिल जाएंगे, जो कि हो सकता है कि अगर तुम अपना होमवर्क किए हो, अगर होमवर्क इन द सेंस रेगुलरली आरसी प्रैक्टिस किए हो सकता है कि उसमें से कोई 3-4 वर्ड्स ऐसे आए जो कि तुम पहले सुने नहीं हो या तो मालूम नहीं है, और अगर होमवर्क ढंग से कर रहे हो तो फिर देखोगे कि वही 2-3 वर्ड्स हैं जो कि तुम you have not heard it before, rest of the words you are comfortable, right? So वैसे 2-3 words when you come across, leave it, skip and move on. Why are you sitting there and trying to pronounce that word? उस word को pronounce करने की कोशिश कर रहे हो, उस word को, जैसे कि मैं किसी को पढ़ के सुना रहा हूं तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से मैं pronounce करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है। जंप एंड गो। पर्टिकुलरली नेम्स, कुछ कंट्रीज के जो लोग हैं उनका जो नेम होता है वो बड़ी अजीब होता है, हमारे हिसाब से अजीब होता है, उनके लिए तो वो उनका नाम है। सो जो पर्टिकुलरली जो यूएसएसआर के कंट्रीज थे, वो जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज होते हैं वहाँ के जो नेम्स होते हैं, जर्मन उनके जो कुछ नेम्स होते हैं, सो वही यूरोपियन कंट्रीज के कुछ नाम जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी किस तरह से प्रोनाउंस करूंगा, छोड़ दो ना, नाम देख लेना, आंख देख लिया ना, फिर आगे बढ़ो और निकल लो। सो ये और एक रीजन होता है हम स्लो डाउन क्यों करते हैं। और इंपॉर्टेंट रीजन, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि मेरा लैक ऑफ वोकैबुलरी।
अगर मेरा वोकैबुलरी नहीं है, मेरा वोकैबुलरी काफी वीक है, आधे से ज्यादा वर्ड्स मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पूरा पैसेज समझने में मुश्किल होगा। अब पूरा पैसेज अगर समझने में मुश्किल होगा तो नेचुरली मैं स्लो ही पढ़ूंगा। अब स्लो पढ़ूंगा तो फिर मैं बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ। मिनिमम मेरे को जितना करना चाहिए वो तो मैं नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। एक तो है कि वोकैबुलरी प्रैक्टिस करोगे, वो तो है ही। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ध्यान रखना, एवरी डे शाम को और एवरी डे जब पढ़ाई करते हो कोशिश करना एक या दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैक टू बैक करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड सर्टन वर्ड्स, हरदम है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ये मेरे साथ भी होता है कि एक आरसी में पढ़ रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि वो आरसी में जितने वर्ड दिए गए मुझे सब मालूम है, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी कभी कभार कुछ ना कुछ वर्ड्स निकल आता है, कभी कभार कुछ ना कुछ वर्ड्स निकल आता है जो कि मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। अब तुम लोग बच्चे हो, तो तुम लोग जब पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली ये दिक्कत तो आएगा ही, देयर विल बी सम वर्ड्स व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड। So that's why what should be done? Precaution. What is that precaution? Start developing vocabulary. Make your vocabulary strong so that whatever words come, at least most of them you know. एक दो तीन words अगर नहीं आते हैं, that will not make much of an impact as far as complete understanding of the RC is concerned. ठीक है, so वो होगा। इसको एक्सेप्ट करो कि हरदम कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे जो मुझे समझ में नहीं आए। डोंट से कि ये वर्ड्स नहीं मुझे नहीं आते तो आरसी में समझ नहीं पाऊंगा, या तो मुझे सारा वर्ड्स आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होता है, मेरे साथ भी होता है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ भी होता है। कभी कभार कोई किसी से आरसी में एक दो वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि मुझे अचानक याद नहीं आता है, मुझे मालूम नहीं होता है, मुझे फिर देखना पड़ता है। तो ये होगा, ठीक है। देन व्हाट रीडिंग टेक्निक शुड आई एम्प्लॉय? देखो ये दिस क्वेश्चन कैसे आरसी को पढ़ने से बेहतर होगा, इजी होगा, जल्दी होगा, ये सारा सवाल पूछते हैं। नाउ मैं आरसी को कैसे पढ़ूंगा, यानी उनका कहने का अर्थ है मैं पहले उसका क्वेश्चंस पढ़ लूं, क्वेश्चंस पढ़ लूं, ऑप्शंस पढ़ लूं, फिर पूरा 5 7 या 8 क्वेश्चंस में पहले पढ़ लूं, उसका ऑप्शंस पढ़ लूं, फिर मैं पैसेज पढ़ना शुरू करूंगा। ये एक। दूसरा है या तो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा एंड पैसेज पढ़ूंगा, ये एक पहला। दूसरा मेथड है मैं पूरा पैसेज पढ़ लूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा एंड आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो कि नॉर्मल मेथड है। और थर्ड मेथड है मैं आरसी को पैराग्राफ वाइज पढ़ूंगा। जैसे कि मैं पहला पैराग्राफ अगर छोटा है तो पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ को मैं पहले पढ़ लूंगा, फिर जो जितने क्वेश्चन है मैं एक बार आई रन माई आईज ओवर इट, नजर दौड़ा दूंगा उसको। I'll run my eyes over it and I'll try to find out, are there any questions from the portion that I just read? If it is there, I will take the answers. What is the advantage? ये जो पहला दो पैराग्राफ में से को मैं दिमाग से कुछ देर में निकाल दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ का रिलेटेड कोई भी जितना क्वेश्चन था मैं आंसर कर चुका हूं, और इस पैराग्राफ रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन ना हो, शायद कोई क्वेश्चन ना हो। फिर मैं थर्ड पैराग्राफ पढ़ता हूं, या फोर्थ पैराग्राफ अगर है तो फोर्थ पढ़ता हूं करके। उस समय तक जब मैं थर्ड या फोर्थ पढ़ता हूँ दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चंस घूम रहे हैं, तो फिर जैसे मिलते जाएंगे मैं आंसर करता जाऊंगा। तो ये थर्ड मेथड। बट इफ यू आस्क माय ओपिनियन, तो मेरा जो मेथड है, मेरा मेथड है कि मैं पहले आरसी को बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूं, पूरा पूरा टाइम आरसी को ध्यान से पढ़ने में मैं लगाता हूं। उसके बाद जो होता है, मैं जो आंसर करने जाता हूं तो मुझे बहुत आसान नहीं हो जाता है। यानी हर एक क्वेश्चन का चारों ऑप्शन को ढूंढने के लिए मुझे पैसेज में और जाना नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो मुझे पता चलता है कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, सो एलिमिनेशन इज द सेफेस्ट मेथड। तो मैं अक्सर यही करता हूं, और मेरे और भी कुछ जो कलीग्स हैं वो लोग भी सेम मेथड करते हैं। बोलते हैं हम लोग पहले पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा हम लोग पैसेज पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि जब क्वेश्चन आंसर जब आंसर करें तो उसमें जो ऑप्शंस हैं हम उसको इजीली एलिमिनेट कर सकें, और ताकि हमको बार बार हर क्वेश्चन हर ऑप्शन के लिए हम लोग को पैसेज में आना ना पड़े, बिकॉज दैट इज गोइंग टू किल मोर टाइम, इट इज गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम ऑफ योर्स। ठीक है, सो ये मेरा मेथड है कि पैसेज पढ़ो फिर ऑप्शंस पे आओ।
बट अगेन जिस मेथड से, जिस किसी भी मेथड से तुम्हारा आंसर्स, लाइक यू कैन आंसर कंप्लीटली, यू कैन आंसर कॉन्फिडेंटली, एक्यूरेसी रेट तुम्हारा हाई होगा, हो रहा है, या आसानी हो रहा है आरसी को आंसर करने में, तुम वही मेथड पे जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं और कोई क्या बोल रहा है, कहीं पे वीडियोस में क्या बोल रहे हैं, कोई किताब में क्या लिखा हुआ है, उस पर मत जाओ। वॉट गिव्स यू रिजल्ट, तुमको जो चीज रिजल्ट देता है, यू डू दैट, राइट। एंड वॉट एवर यू मेथड यू टेक फॉर योर सेल्फ, कोई भी मेथड तुम अपनाओ, रिमेंबर उसको इतना ज्यादा पॉलिश करो, उसको इतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करो कि उसी में ही तुम्हारा परफेक्शन आ जाए। क्लियर? ओके, सो ये हो गया व्हाट रीडिंग टेक्निक शुड आई एम्प्लॉय, डिपेंड्स प्योरली ऑन यू। How to practice? Well, two things. RC, when we are solving RC, there are two things. One, which is very important, is speed. You have to read speed. Second thing is patience. Patience. Because whatever I am reading may or may not be my area of interest. May not be part of my academic pursuit, यानी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ +2 या ग्रेजुएशन में, उस रिलेटेड ये टॉपिक है ही नहीं। अगर है नहीं तो मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं, या तो ऐसे में भी वो टॉपिक मेरे लिए इंटरेस्टिंग है नहीं। अगर नहीं है, अगर वो टॉपिक मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जल्दी बोर हो जाऊंगा। अब जैसे ही दिमाग टायर्ड होने लगे, दिमाग जैसे ही टायर्ड होने लगे, तो उसका जो एफिशिएंसी रेट वो कमता जाता है, उसका जो एफिशिएंसी है वो कमता जाता है, और मैं देखता हूं कि मेरा आंसर्स ज्यादा गलत हो रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी देखना कि जो आरसी तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, जिस आरसी को पढ़ के तुमको लगता है हाँ यार इस बारे में तो जानने से अच्छा है, या तो अरे अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, सो यू आर लाइक वेरी एक्साइटेड टू रीड दैट आरसी। सो वहां पे देखना 8 क्वेश्चन में से तुम्हारा 6-7 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, और जो आरसी को देख के तुम बोला तो ओ माय गॉड फिर इसको पढ़ना है, तो ये तरह का माइंडसेट आता है। वहां पे देखना अगर 8 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन में करेक्ट होता है, रेस्ट रॉन्ग होता है। आई एम सॉरी। सो आरसीज इस प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो ये दो मेथड को हम लोग टारगेट करेंगे। कौन सा? पहला है पेशेंस, धैर्य, और दूसरा है रीडिंग अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो ये दोनों चीज करने के लिए पहला ये करना, एक जगह पे अपने आप को बैठाना कि मेरे को यहां से उठना नहीं है फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, एंड आरसी करना। तो टाइम एंड पेशेंस। टाइम, ईच आरसी अगर वो 650 वर्ड्स का आरसी है तो इट शुड टेक यू मैक्स टू मैक्स 6 मिनट्स। 6 मिनट्स लगना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं बोला 1 मिनट में 200 प्लस वर्ड्स हम पढ़ सकते हैं, या तो पढ़ना चाहिए ऑन एवरेज। स्लो स्पीड में अगर भी हम जाते हैं, या तो यू शुड बी एबल टू रीड एट 300 टू 350, बट इफेक्टिव स्पीड कम्स डाउन टू 200, क्योंकि स्लो डाउन करना है ना, कॉमास के पास, सेमिकोलॉन के पास में, कंजंक्शन के पास में स्लो डाउन करना है, तो इफेक्टिव स्पीड कम्स डाउन टू 200। सो 200 वर्ड्स पर मिनट, एक 650 वर्ड का पैसेज, सो 3 मिनट लगना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ 6 मिनट। सो ध्यान से उसको 6 मिनट में उस पैसेज को पहले पढ़ो। तो इनिशियली 6 मिनट्स फिक्स करो एक आरसी करने के लिए, और बैक टू बैक 3 आरसीज करना। उठना नहीं, उस जगह से उठना नहीं जब तक वो तीनों आरसीज ना हो जाए। रॉन्ग राइट मत सोचना, आंसर्स गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, या तो मेरे को आंसर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, इनिशियली उतना सोचना नहीं, पहले पहले उतना सोचना नहीं। जस्ट गो ऑन, डू इट, get used to, get habituated of managing the time, controlling the time, reading, all this, get habituated, right? And then you can slowly start mastering. So दो चीज पे ध्यान रखना, एक है टाइम, दूसरा है पेशेंस। ये दोनों को अपने कंट्रोल में, अपने बस में लाओ, अच्छा हो जाएगा। What kind of types of questions come? As I told you, there are 6 type of questions: main idea question, logical structure question, implied idea or inferential questions, extended idea or further idea questions, then tone questions and contextual vocabulary questions. ये contextual vocabulary क्या questions क्या होता है? What is the meaning of this word with reference to the passage? इसको हम लोग contextual vocabulary बोलते हैं,
which is the what is the meaning of this passage with reference to the sentence or with reference to the passage, what is उसको हम लोग contextual vocabulary बोलते हैं. So ये 6 टाइप का क्वेश्चंस होता है, एंड ईच टाइप का क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए वो हम लोग करेंगे. जस्ट जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आरसीज डिस्कस करें, हम लोग एक एक आरसी लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. जब वो आरसी डिस्कस करेंगे उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उस समय मैं समझा दूंगा कि ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करें, कहाँ से उसका आंसर हम लोग निकालें और कैसे उसका आंसर्स को हम लोग निकालें. तो वो मैं बताऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आरसी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे. ना और भी सवाल बच्चे पूछते हैं, सर ये बहुत बोरिंग है. अब एक अगर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहा है, उसके लिए तो बोरिंग होगा ही. अब कोई अगर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या तो म्यूजिक या आर्ट उस सब्जेक्ट के साथ में वो रिलेटेड नहीं है, जब वो पढ़ेगा तो उसको तो इंटरेस्टिंग तो लगेगा नहीं. अच्छा, अब मैं एंट्रेंस में बैठा हूं, एग्जाम में बैठा हूं और वहां पे मैं बोरिंग और इंटरेस्टिंग कर रहा हूं. मैं क्या कोई मूवी देखने आया हूं कि वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए? मैं आया हूं एक कंपटीशन में. अगर बाकी बच्चे लोग उस कंपटीशन में बैठ के वो लोग उस टॉपिक पे और उस सब्जेक्ट पे या तो एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो प्रॉब्लम मेरे में है, ना कि इट इज बोरिंग. अब मुझे वहां पे कोई मूवीज देखने नहीं जा रहा हूं कि कोई कोई पार्टी में नहीं जा रहा हूं, तो बोरिंग और इंटरेस्टिंग का सोच भी नहीं आना चाहिए दिमाग में. ना इंटरेस्टिंग या बोरिंग का सोच भी नहीं आना चाहिए. ये सोच कब आता है मालूम है? जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब घर में फुर्सत से बैठ के प्रैक्टिस करते हो ना, तब जाके ये आता है कि बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है. एग्जाम हॉल में ये दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है. एग्जाम हॉल में सोचने के लिए कि बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, टाइम ही नहीं होता. और तुम करते या तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा क्वेश्चन भागते रहते हो. इससे आप तुम बोलते नहीं हो इट इज बोरिंग, राइट? देन वेरी डिफिकल्ट टू रीड 3 और 4 आरसीज बैक टू बैक. ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. जैसे कि बैंकिंग, सॉरी, कैट एंड मैनेजमेंट एग्जाम में 3, 4, 5 आरसीज आते हैं. एक सॉल्व करना अगर वर्बल, तो उसमें 4 या 5 आरसीज आते हैं बैक टू बैक. आई मीन लेंथी वंस. उसमें करीब 25-30 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस करीब करीब होते हैं. तो यू गेट अराउंड 4-5 आरसीज. तो मैं बच्चों को हरदम एडवाइस करता हूं कि तुम प्रैक्टिस भी उसी लाइन पे करो. यानी बैठो जब भी आरसी करने के लिए 4 से 5 आरसीज बैक टू बैक करो. और उसमें एडवांटेज क्या है ना, जो प्रैक्टिस कर रहे होगे, जो 4 पैसेजेस करोगे या 5 पैसेजेस करो बैक टू बैक, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होगा. कोई सोशल से होगा, कोई म्यूजिक से होगा, कोई एंथ्रोपोलॉजी से होगा, कोई लिटरेचर से होगा. तो तुम्हारा एक आदत बन रहा है, एक प्रैक्टिस हो रहा है, हाउ योर ब्रेन can quickly switch over from sociology to literature, from literature to music, from music to philosophy, from philosophy to say political philosophy या international politics. उसमें तो सब दिमाग घूम रहा है. सो ब्रेन को क्विकली एडजस्ट करने का वो प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए जब घर में कर रहे हो, ये जो वर्ड है ना, प्लीज ध्यान रखो. ये वर्ड अगर दिमाग में आया तो समझ लेना कि तुम्हारा आरसीस कभी नहीं होगा. क्योंकि जब तक यू आर नॉट सॉल्विंग, टिल यू आर नॉट सॉल्विंग एन आरसी वेर यू आर इंटरेस्टेड, ईगर, एक्साइटेड, जोश में हो, करना है, आरसी करते हैं, देखते हैं यार इसमें कुछ है जो कि मैं पहले पढ़ा नहीं था, या तो मैं उसको नॉर्मली पढ़ता भी नहीं. अगर आरसी नहीं होता तो शायद मैं उस चीज को पढ़ता भी नहीं. और देख, और आरसी के बहाने चलो कम से कम ये तो हम पढ़ लेंगे. तो ये जो सोच है, ये सोच दिमाग में लाके अगर तुम आरसी पढ़ोगे, देखना आरसी इंटरेस्टिंग होगा. या तो तुम्हारा आरसी में जो एक्यूरेसी रेट है क्वेश्चंस का वो हाई होगा. और अगर हरदम मैं ये सोच के पढ़ता रहा कि कितना बोरिंग है, मैं बेचारा, मैं ये सब पढ़ना पड़ रहा है यार, क्या यार ये सब क्या पढ़ाई है, इसको कौन पढ़ता है, अगर ये माइंडसेट, if this is the way you are reacting, if it is this is the attitude that you have towards a reading comprehension, you will see your accuracy rate drops. If you are answering 8 questions, hardly you are getting 2 correct or 3 correct, rest you are getting it wrong. Wrong is again not a problem. Problem is the negative marking. It's a negative marking, means if there are 3 or 4 errors, it eats away one of your correct answers also. सो इसलिए कभी भी दिमाग में ये थॉट मत लाना कि ये बोरिंग है या इंटरेस्टिंग.
और ये जो 3 से 4 आरसीज बैक टू बैक पढ़ना ये जरूरी है, ताकि मेरा प्रैक्टिस हो जाए एक जगह पे बैठ के कुछ देर तक पढ़ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को पढ़ना और ब्रेन को क्विकली एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरा से तीसरा टॉपिक में लेके जाना, और क्विकली वो पैराग्राफ्स को एनालाइज करना, वो जो पैराग्राफ या पैसेज को एनालाइज करना, उसको आंसर करना कितना क्विकली मैं कर सकता हूं। सो ये होता है उसका ऑब्जेक्टिव। ये 3 से 4 आरसीज बैक टू बैक अगर प्रैक्टिस करते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सो जब भी प्रैक्टिस करना आरसीज बैक टू बैक करना, और यू विल फाइंड इस मैट्रिक्स डिजी लर्न पे यू विल फाइंड लॉट ऑफ, पोर्टल में यू विल गेट लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, उसको प्रैक्टिस करो एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, देन आई कैनॉट अंडरस्टैंड सम आरसीज, ये भी और एक एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है दैट हर एक आरसी मेरे समझ में आ रहा होगा, मुझे मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा, ऐसे नहीं होता। देयर विल बी ऑलवेज सम आरसीज व्हिच विल बी लिटिल बियॉन्ड माय कंफर्ट जोन, यानी जो मैं पढ़ सकता हूं या मैं कंफर्टेबल हूं, या थोड़ा डिफिकल्ट होने से भी मैं मैनेज कर सकता हूं। कभी ना कुछ आरसीज ऐसे मिलेंगे जो कि मेरे कंफर्ट जोन के बाहर भी है और काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट आरसी, he is he has created it in a complex manner, so that if you have not done enough homework, if you have not practiced beforehand, पहले बहुत मेहनत नहीं किए हो, you have not done your homework, for you that is going to pose a real challenge, that is going to pose a real challenge. And that's why they will always give you RCs which would require you to stretch yourself a little bit, अपने आप को थोड़ा सा stretch करना पड़ेगा. So RCs will be there will not be that you will be able to understand every RC. Some of those RCs which you will be comfortable are the ones which either you know that subject matter, उस subject matter के बारे में idea है, या तो वो तुम्हारा एक स्कूल कॉलेज का जो पढ़ाई का इज अ पार्ट ऑफ इट, और you had read that in your school level, so you have a more or less idea about it. So वो RCs तुमको comfortable लगेगा, और या you will feel good about it. But there will be some RCs which will always be difficult. Right? I hope I have answered all the queries that were there in your mind. And we will be practicing RCs online. I will take you through some RCs. I will explain you those RCs and all. I'll do that. But there will be, as I said, there will always be some RCs which will go beyond your comfort zone. So do not worry about it. If 2 3 4 आरसीज नहीं हो रहे हैं, सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग, करीब 40 50 आरसीज कर चुके हो, उसमें से 3 4 आरसीज बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल वरी, यू शुड नेवर वरी अबाउट इट. डोंट स्टार्ट सेइंग कि मेरे से आरसी होता नहीं है. डोंट से दैट. पहला आरसी नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, मत होने दो. बट मैं तो पढ़ रहा हूं ना, हैबिट तो हो रहा है. आरसीज होते कैसे हैं, मैं तो ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है, मैं तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, उसके बिना पे कल को मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा उस टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे अगर मैं स्ट्रांग बन गया, सो फिर अगेन आई विल बी गुड इन आरसीज आल्सो. सो नेवर गिव दैट नेगेटिव कमेंट कि मेरे से आरसीज होता नहीं है. जस्ट से दैट दिस टॉपिक वाज डिफिकल्ट. एंड आरसी नहीं होता है, ये अधिकतर बच्चे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो छोटा छोटा अल्फाबेट्स में जो लिखा रहता है इंग्लिश में, उसको पूरा पढ़ना उनके लिए प्रॉब्लम होता है. उनके पास में उतना पेशेंस होता नहीं है, और वो लोग बैठ के इतना देर पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए तो टफ होगा ही. बट अगर मैं एक एंट्रेंस के लिए जा रहा हूं, एक कंपटीशन के लिए जा रहा हूं, और मैं बोलूंगा मेरे से ये होता नहीं, और वो होता नहीं, और वो होता नहीं, तो फिर मुझे कंपटीशन में जाना ही नहीं चाहिए. क्योंकि कंपटीशन में जो भी आ रहे हैं वो लोग बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, है ना. तो और मैं मेहनत नहीं करके, अगर मेरे पास में बहुत सारे बहाने होंगे नहीं करने के, तो फिर तो होगा ही नहीं. Clear? So in some other video we will discuss about how to handle each type of questions, and if you have any query you can always post in the portal, so that we will definitely answer you. Okay, so thank you for watching this. We always try to think from a student's point of view कि एक बच्चा कैसा सोच रहा होगा, कैसे उसको हम उसके लिए इजी कर सके, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स आ रहा होगा. हम लोग हरदम यही कोशिश करते हैं टू कम डाउन टू अ स्टूडेंट्स लेवल
and thinking about the student. We have been dealing with students since long 14-15 साल हो चुका कि we are dealing with students, so we know what goes on in the mind of a student, वो कैसा सोच रहा है. So we always try to give you videos which will make your going smooth or easy. We always try to make you seem comfortable, and we always want to make you we want to see you successful, right? So thank you for watching the Matrix Digilearn English classes videos. In the next videos, we will discuss RCs. We will discuss one by one RCs, where I will explain you how to find the answers, and I will explain you the RC. RC मैं पढ़ूंगा और तुम लोगों को समझाऊंगा. फिर जब क्वेश्चंस करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि आंसर्स करेंगे तो फिर कैसे पैसेज में से वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ लिखा हुआ, कैसे कैसे लिखा हुआ, हम आंसर को वहां से डिराइव या how will we deduce that answer, all that I am going to tell you in the next videos. Till then, thank you all of you.